Hello learners, here is a new video of English Bal Bharati for Standard 6 student. Before we move forward, don't forget to like, share, subscribe and comment my channel if you find it worthy. So let's see what we are going to learn today. Here you can see some pictures. The first one is of winter, the second is of spring, the third denotes summer and the fourth one is of autumn. I hope you can guess under which title these all comes. So I hope you know that this all comes under seasons. Okay, these all are season: winter season, spring season, summer season and autumn season. You must be aware of all these seasons because you are staying in India, and India has 4 seasons according to its rotation and revolution of the earth. Okay, now let's see according to based on this what we are going to learn today. Here I had posted some description of season. Now for example, spring season that runs from March 1st to May 31st. Summer season runs from June 1 to August 31. Fall yani autumn season runs from September 1 to November 13. And winter season, you can see winter season around December 1 to February 28th या February 29, that is leap year. So all these are dates from which to which the seasons occur and ends. ठीक है? So here we are going to learn a new poem, that is Autumn Greeting, written by George Cooper. So who is George Cooper? Let's see about him also. He is George Cooper. Now George Cooper, he was born on 1840 till 1927. Now he was born in New York City. He began writing as a child and by the age of 16 was publishing poems in leading magazines. He studied law and practiced for several years, but eventually decided to pursue a career as a writer. He wrote a number of hymns and much of his work was targeted at children. Stephen Foster set many of George's lyrics to music. The best known is probably Sweet Genevieve. ठीक है, जॉर्ज कूपर जो थे उनका जन्म 1840 को हुआ था और उनकी डेथ 1927 तक को हुई थी. ठीक है, उनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में. उन्होंने एज अ चाइल्ड, जब वो छोटे से बच्चे थे तब से ही राइटिंग शुरू कर दिया था और बाय द एज ऑफ 16. ठीक है, और उन्होंने अपनी एक पोएम लीडिंग मैगजीन में उनकी पोएम भी पब्लिश हुई थी. उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस की थी, लॉ स्टडी किया था, उसकी प्रैक्टिस भी की थी बहुत सालों तक. वो लॉयर एज अ लॉयर भी रह चुके हैं, लेकिन अंत में इवेंचुअली आखिर में आते आते उन्होंने बोला नहीं, ये लॉ वगैरह मेरे टाइप का नहीं है, आई वॉन्ट टू ट्राई माई करियर इन राइटिंग. तो उन्होंने अपना करियर राइटिंग में शुरू कर दिया. उन्होंने बहुत सारी हाइम्स यानी यू कैन से प्रेयर, ठीक है, हाइम्स और बहुत सारे उनके जो राइटिंग वर्क्स थे, जो रिटर्न वर्क थे, वो थे बच्चों को टारगेट करके थे. मतलब उनके लिए पोएम्स लिखा करते थे, उनके लिए स्टोरीज लिखा करते थे ऐसा. और उनकी एक स्वीट जेनेवी नाम की पोएम थी जो एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन हैं जो स्टीफन फॉस्टर, उन्होंने अपने उस स्वीट जेनेविव को लिरिक्स को म्यूज़िक में भी कन्वर्ट किया था. ओके, सो हियर्स अ शॉर्ट समरी ऑफ जॉर्ज कूपर. नाउ लेट्स go forward to a poem. Here is the poem. First I would read out the poem for you all, then I'll explain you stanza by stanza. ठीक है? An autumn greeting. Come little leaves, said the wind one day. Come over the meadows with me and play. Put on your dresses of red and gold. Summer is gone and the days grow cold. Soon as the leaves heard the wind's loud call, down they came fluttering one and all. Over the meadows they danced and flew, singing the soft little songs they knew. Dancing and flying the little leaves went. Winter had called them and they were content. Soon fast asleep in their earthy beds, the snow laid a soft mantle over their heads. George Cooper. So sweetly it is written over here.
तो इस पोयम में उन्होंने ऑटम ग्रीटिंग, ऑटम यानी ऐसा सीज़न, वो सीज़न जो अब गर्मी चली गई है, ठीक है, गर्मी जो है वो चली गई है, अब आ गई है ठंडी से पहले। गर्मी के बाद और ठंडी से पहले हमारे पास एक सीज़न होता है, उसे हम ऑटम कहते हैं, ठीक है। वो होता है पतझड़ का सीज़न, जिसमें पत्ते सारे आपने देखे होंगे, सारे आपके सराउंडिंग में सारे पेड़ पौधे रहते हैं, उनकी पत्तियां जो रहती हैं वो फॉल हो जाती हैं, इसीलिए उसे फॉल भी कहा जाता है, ठीक है, फॉल सीज़न भी कहा जाता है, क्योंकि वो टाइम पे सारे जो लीव्स हैं वो रेड एंड ग्रीन होके, सॉरी रेड एंड येलो होके फॉल हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, तो फॉल हो जाते हैं। तो वो इस ऑटम को बताना चाहते हैं ऑटम ग्रीटिंग के थ्रू। तो क्या है देखते हैं, एक एक स्टैंजा आई एक्सप्लेन टू यू। कम लिटिल लीव्स सेड द विंड वन डे। तो लीव्स को बुला रहा है, कौन बुला रहा है लीव्स को? विंड बुला रही है, विंड यानी हवा। तो विंड, आपको पता है हवाएं सन 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 चलती हैं, जब ठंडी आने वाली होती है तो कैसी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो यहाँ ये जो पूरा पोयम है ना, वो पर्सोनिफिकेशन पे बेस्ड है। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है जो नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग क्वालिटीज़ देते हैं। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स स्माइल कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज़ देने को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, सो यू मस्ट नो अबाउट इट, ठीक है। सो यहाँ पे पहली दो लाइंस में क्या कहा, ऑथर ने क्या कहा है कि जो हवाएं थी वो लीव्स को बुला रही थी। कम ओवर द मीडोज विथ मी एंड प्ले। हवा के साथ वो बोलती है कि तुम मेरे साथ आओ, हवा बोलती है तुम मेरे साथ आओ। मीडो यानी ग्राउंड जो होता है ना, उसे गार्डन, उसे मीडो भी कहते हैं। वहाँ पे आओ मेरे साथ, एंड प्ले विथ मी, वो कहती है मेरे साथ खेलो। पुट ऑन योर ड्रेसेस ऑफ रेड एंड गोल्ड, समर इज़ गॉन एंड द डेज ग्रो कोल्ड। तो एज आई सेड टू यू, समर जो है वो चला जा चुका है और अब कौन सा सीज़न आने वाला है? कोल्ड आने वाला है, यानी विंटर आने वाला है, तो उसके बीच का ये ऑटम है। तो विंड कह रहा है कि अपने जो ड्रेस है ना, अपने ड्रेसेस रेड और गोल्ड यानी येलो को यहाँ गोल्ड बोला गया है, तो रेड और गोल्ड कलर के कपड़े पहनो, ग्रीन छोड़ दो, ये रेड एंड गोल्ड कलर के कपड़े पहनो और आ जाओ। तो यहाँ पे उसके लीव्स के कलर को डिस्क्राइब किया गया है कि उसके लीव्स कैसे कलर चेंज हो जाता है ये सीज़न में, ठीक है। तो समर चला गया है, कोल्ड आ गया है, तो विंड उसे बुला रही है उसके साथ मीडो में खेलने के लिए, मीडो यानी गार्डन। Soon as the leaves heard the wind's loud call, down they came fluttering one and all. तो जैसे ही लीव्स ने विंड की आवाज़ सुनी कि उन्हें वो बुला रहा है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहा है, वैसे सब फ्लटर करते हुए, फ्लटर यानी डांस करते हुए ना, ऐसे लहराते हुए, एक गिरी, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे के सारे फिर गिरने लग गए। Over the meadows they danced and flew, singing the soft little songs they knew. तो मीडो में यानी गार्डन में जो लीव्स थे वो एक करके सारे, एक दो करके सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पे हवा के साथ वो डांस करते हैं। पता देखा है आप लोग ने, जब पत्ते नीचे गिरे होते हैं तो कैसे वो लहराते हैं ना, हवा में उड़ते हैं। तो वो उड़ने को यहाँ पे डांस करने का मतलब उनको डिस्क्राइब किया गया है कि वो उड़ते नहीं है, वो डांस करते हैं। लीव्स जो है वो अपने ही मस्ती में डांस करते हैं और एक सन करके हवा जो रहती है उसके साथ एक म्यूज़िक वो गाना, मतलब उनको बोला गया है कि लीव्स अपने, उनको जो गाना आता है ना वो गा के डांस करते हैं, ठीक है। डांसिंग एंड फ्लाइंग द लिटिल लीव्स वेंट, विंटर हैड कॉल्ड देम एंड दे वर कंटेंट। तो डांस करते हुए, फ्लाई करते हुए सारे के सारे लीव्स जो है वो जाती हैं क्योंकि विंटर उन्हें बुला रहा है और वो अब कंटेंट है, उनका लाइफ स्पैन जो है वो पूरा हो गया है। हर एक ट्री का एक लाइफ स्पैन होता है, मतलब ट्री का होता है बट लीव्स का भी होता है। हर सीज़न लीव्स जो है ना वो एक नई लाइफ जीती है। तो अब उनका टाइम ख़त्म हो गया, एक ऑटम से दूसरे ऑटम तक उनका टाइम रहता है, देन वो फॉल होते हैं, न्यू लीव्स जनरेट होते हैं। तो अब उनका टाइम ख़त्म हो चुका है, उनको पता है, जैसे ह्यूमन बीइंग का टाइम होता है अर्थ पे। एज यू नो, ह्यूमन बीइंग बॉर्न करता है, फिर वो बड़ा होता है, ग्रो होता है, चाइल्ड बनता है, देन ही बिकम एडल्ट, देन अडल्ट, देन ग्रो ओल्ड एंड देन मतलब उसकी डेथ हो जाती है, सो ही डाइज। तो उसी तरह लीव्स का भी एक स्पैन होता है, वो स्पैन उसका कंप्लीट हो गया और वो कंटेंट है। कंटेंट यानी उसको खुश है, अब उससे वो जा रही है, उसे खुशी है, उसे कोई तकलीफ़ या कोई दुख नहीं है जाने का।
soon fast asleep in their earthy beds. The snow laid a soft mantle over their heads. तो अब वो सारी की सारी नीचे ज़मीन पे फैल गई और सो गई. अर्दी बेड्स यानी अर्थ को उनका बेड बताया गया है. अर्थ एक मदर है एज यू नो, तो अर्थ मदर जो धरती माँ है उनको उनका बेड बताया गया है. अर्दी बेड्स, तो उनको बेड बताया गया और वो वहाँ पे शांति से सब के सब सो गए हैं. अब विंटर आ गया है, मतलब स्नो गिरता है. हमारे यहाँ नहीं गिरता बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में यू कैन सी स्नोफॉल होता है विंटर के दौरान. सो अब विंटर आ गया है, तो विंटर आने की वजह से जो स्नो है वो एक सॉफ्ट मेंटल, सॉफ्ट तो पता है आपको, मेंटल यानी चादर यानी कवर, तो सारे जो लीव्स है उनके ऊपर कवर आ जाता है स्नो का कवर आ जाता है उनके सर पे, ऐसा बताया गया. और वो शांति से अर्थ के ऊपर सो जाती हैं. तो ये उनका एक लाइफ स्पैन जो था वो कंप्लीट हो गया, ऐसा ये ऑटम ग्रीटिंग कह रही है. सो आई होप यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई सेड टू यू. अगर कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है, कुछ भी है जस्ट राइट इट ओवर देयर. सो इट वॉज अ पोएम बाय जॉर्ज कूपर. इट्स all about autumn greeting, how autumn comes, then how the changes occur in the surrounding, है ना. Everywhere the you can see chilly movements and fruits वगैरह भी आपको चेंज मिलेंगे. I guess विंटर में, ऑटम में कौन से फ्रूट्स आते होंगे, कैन यू से मी? ओके, फिजिकल क्लास नहीं है, यू कैंट. सो ओके, लेट्स फाइंड. आपको मुझे 2-3 फ्रूट्स, अगर आपने ये वीडियो देखे होंगे तो आपको मुझे 2-3 फ्रूट्स जो ऑटम में मिलते हैं, यू हैव टू कमेंट दैट इन दी कमेंट बॉक्स. ठीक है, देखती हूँ आपको कितना नॉलेज है. ओके, थैंक यू. होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट.